نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر جس سزاوار ہیں جو ہم تمام کا پالنہار ہے. حاضرین محترم، عفت مآب خواتین، پیارے معصوم سے بچوں، آپ تمام مسلسل 6 دن سے حضرت امامنا حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود امر اللہ مراد اللہ قلیب اللہ ہمسر رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کی خلیفہ دوم حضرت بندگی میاں سید خمیر صدیق ولایت سید الشہداء حامل بار امانت بدلہ ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری سماعت فرما رہے ہیں. حاضرین محترم، رب ذوالجلال کا فرمان ذیشان جیسا کہ آپ تمام نے سماعت فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ جاوید ہیں. خاص کر لیتا یہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بذیشان تھی کہ رب ذوالجلال نے اپنے رحمت میں میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کر لیا تھا. جیسا کہ آپ تمام سماعت فرما چکے ہیں کہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد ہجرت کرتے ہوئے گجرات میں آ کر قیام پذیر ہوئے. وہاں پر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. تفصیل میں گئے بغیر مختصر انداز میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچپن سے ہی بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے تعلق سے اس قسم کے خواب کی تعبیر دی گئی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ نے جب بی بی بوا تاج نے خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر اپنے بھائی جو اس وقت کے صاحب زمانہ تھے، معلومات کو زیادہ ان کو معلومات رہا کرتی تھی، تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ میں نے اس قسم سے خواب دیکھا ہے کہ افق آسمان سے سورج نکل کر میرے دامن میں داخل ہو رہا ہے. تو اس قسم کی تفصیل میں گئے بغیر میں مختصر انداز میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی تعبیر آپ کے بھائی نے اس قسم سے دی کہ میری ہمشرہ محترمہ، تم پریشان ہونے کی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس خواب نے جس قسم کا خواب تم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ تمہارے ہونے والی جو اولاد ہے علامات اس قسم سے ظاہر ہونے والی ہے کہ وہ یا تو مہدی ہوگا یا وزیر مہدی ہوگا. حاضرین محترم، دیکھیے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس قسم سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہستی پیدا ہونے والی ہے وہ ہستی یا تو امامنا حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام ہو سکتی ہے یا وزیر مہدی ہونے والی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے ہی بالا تر و بلند کر دی تھی کہ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تولد ہوئی. تولد کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 3 برس کو پہنچی، جب آپ کی عمر مبارک 3 برس کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک قسم سے بے ہوشی آپ پر طاری ہو جاتی ہے. آپ بے ہوش ہو کر اس گھر کے مقام پر جو ہے گر جاتے ہیں. وہ غریبی کا، تنگ دستی کا دور جہاں پر ہر ایک کو اپنے اڑوس پڑوس کی فکر رہا کرتی تھی، تو ہوا بھی اس طریقے سے اس وقت بھی ویسے ہی ہوا کہ جب میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتاری ہو کر گرے تو اڑوس پڑوس کے اطراف و اکناف کے لوگ جمع ہو گئے، عورتیں
किसी ने कहा कि ये नजर का मामला होगा, किसी ने कहा किसी किस्म से जादू हो गया होगा, टोना हुआ होगा। अलग अलग अपने अपने जहन से अपने अपने समझ के मुताबिक जो है हर कोई ये कहने लगा। फिर मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मामू वहां पर आए, तशरीफ फरमा हुए, देखा कि ना तो इस बच्चे को नजर का हुआ है, ना तो किसी किस्म का टोका हुआ है, ना तो इसको किसी किस्म का जादू हुआ है, ये तो खुदा के हक की मस्ती में सरचार हो गया। अजीजान मोहतरम, उम्र कितनी है? 3 साल की उम्र है। 3 साल की उम्र में हक के जो है दीदार की मस्ती में सरचार हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। यही वजह थी कि मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपन से ही दुनिया और तालिब दुनिया से नफरत करने लगे। मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जैसा कि आप तमाम ने सुना था कि जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र मुबारक 12 साल को पहुंची तो मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत में आपके मामू मलिक बक्कन, एक रिवायत में मुबारजुल मुल्क आपके नाना, कि उन्होंने ये मशवरा किया कि खानदान कौन सा है, जागीरदाराना, मनसबदाराना, हुकूमत करने वाले उजराओं में से आपका शुमार हुआ करता था। आपके असलाफ का, आपके बुजुर्गान दीन का, आपके बाप दादाओं का जो है हुक्मरानों में से आपका शुमार किया जाता था, हुक्मरानों के उजरा में से शुमार किया जाता था। तो मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अमजद जो है जब इंतकाल कर जा चुके थे तो नाना और मामू को फिक्र हुई कि बादशाह के पास से इनकी हिस्से में जो आने वाली मिल्कियत है, इनके हिस्से में आने वाली जितनी प्रॉपर्टी है वो बादशाह के पास जाकर हम सिफारिश कर कर, क्योंकि मुबारजुल मुल्क की उस वक्त का बादशाह बहुत अच्छे ताल्लुकात रहा करते थे, तो उस बिना पर थोड़ी सी ख्वाहिश जाहिर की कि मियां सैयद सुन्नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बंदगी मियां और आपके भाई मियां सैयद हसन को दोनों को मिलाकर बादशाह के पास जाएंगे और जाकर वहां पर सिफारिश रिकमेंड करेंगे कि इनकी मिल्कियत में जितनी इनके हिस्से में आने वाली इनकी प्रॉपर्टी है इनको नवाज दिया जाए। तो इस किस्म का जब सवाल किया गया बंदगी मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मामू, नाना, बंदे को किसी बादशाह के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। बंदा किसी दुनियादार बादशाह के सामने जाकर अपनी हाजत को पेश नहीं करता, बंदा तो खुदा के सामने सर झुकाया हुआ है और उसी के हक की तलब की दीदार में जो है मसरूफ रहा करता है। मुझे किसी किस्म की दुनिया की जरूरत नहीं है। तो बताया जाता है, समझाया जाता है, मनाया जाता है कि अगर दुनिया में माल और दौलत है तो इज्जत है, विखार है, स्टेटस मेंटेन होगा। जैसा कि आज हम अपने एतबार से जो कहते हैं गाड़ी बंगला वगैरह हुआ तो स्टेटस मेंटेन होता है, लोग हमें इज्जत की निगाह से देखेंगे, विखार की निगाह से देखेंगे, वरना जिंदगी जो की तो गुजर जाएगी। अगर हमारे पास मालदारी जागीरदारी नहीं रही तो हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि मैं जाकर बादशाह के पास तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो कुर्बान जाना चाहिए इमाम अलैहिस्सलाम के उस खलीफे दोम पर। क्या आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मामू, दुनिया में विखार, इज्जत, शोहरत जो भी है वो यही की यही रह जाती है। क्या आपने नहीं देखा कि माल वो है जो माल इंसान को निस्तो नाबूद कर देता है। माल इंसान के पास आ जाए तो माल इंसान को रौनियत पर मजबूर कर देता है। माल इंसान के पास आ जाए तो माल इंसान को फिरौनियत पर मजबूर कर देता है। माल इंसान के पास आ जाए तो माल इंसान को खुदा से दूर कर देता है। माल की नफरत इतनी हुई थी, इतनी सख्त दुनिया और दुनियादारी से मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सख्त नफरत हुई थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम के उस खलीफे दुआम ने इरशाद फरमाया कि मामू, जब आप इज्जत और शोहरत की बात करते हैं, आप जरा बताइए कि अंबिया अलैहिस्सलाम के पास कौन सी दौलत थी, कौन सी उनके पास जागीरदारी थी? क्या वो इज्जतदार नहीं थे? क्या वो इज्जत वाले नहीं थे? तो इस किस्म की दीनदाराना जो बात गुफ्तगू 12 साल के बच्चे की जबानी जब सुनते हैं बड़े शशदर हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी दाल नहीं गली तो मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई हजरत नईम सैयद हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को समझा बुझा कर जो है बादशाह के पास ले जाया जाता है। वहां पर आपके हिस्से में आने वाली मिल्कियत से आपको वो उस मिल्कियत से आपको दिलाया जाता है। तो फिर उसके बाद जब आपको मिल्कियत जब मिली बदगी में सैयद हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो आपके रिश्तेदार, अहबाब
जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो बंदगी मियां सैयद अतन रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात करने के लिए आते हैं, मुबारकबाद देने के लिए आते हैं कि मुबारक हो कि तुम्हारे बाप के बाद तुम्हारी जागीरदारी मनसबदारी तुम्हारे पास आ पहुंची है, तुम्हें हम मुबारकबादी देने के लिए आए हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, मियां रज़ी अल्लाह तआला को क्या था? दुनियादार से, दुनिया से सख्त नफरत थी, क्योंकि दुनिया वो माफिहा इंसान को ले डूबेंगे, इंसान का जो है खातिमा बिल खैर नहीं कराएंगे, क्योंकि जहां पर माल आ जाता है, दौलत आ जाती है, जर जेवर आ जाता है, तो वो सब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से इंसान को इंसान बनने से कहीं दूर लेकर चले जाती है। तो मैं रज़ी अल्लाह की इस गरज पर आपको जो है सख्त नफरत थी, तो सारे के सारे मुलाकात करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं, आते हैं। तो मेरा रज़ी अल्लाह से कहा जाता है कि आपके भाई को बादशाह के पास से जो है फला मिल्कियत मिली है, अगर आप चाहें तो हम उनको बुलाकर आपसे मिलाने के लिए लाते हैं। तो मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साफ तौर से इनकार कर देते हैं। बंदे को जो है दुनियादारी, वो दुनियादारों से सख्त नफरत है, मैं उससे आना तो दूर, मैं उसकी सूरत तक नहीं देख सकता। कौन है? सगे भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, बावजूद उसके आप जो है सख्त नफरत वहां पर जाहिर करते हैं। तो बाज लोग अपने 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 हिसाब से ये कहने लगते हैं कि बाप की जो जागीरदारी थी, जो मिल्कियत इनके हिस्से में नहीं आई, छोटे भाई के हिस्से में आ गई, तो शायद उस बग़्ज़ से, उस इनाद से मियां रज़ी अल्लाह तआला उनसे मुलाकात नहीं करते। तो ज़िंदानी मोहतरम, वो हस्ती, वो मिल्कियत से, वो दुनियादारी से कहां पर नफरत करने वाली है, बग़्ज़ इनाद करने वाली है, जो 3 साल की उम्र में जो है अल्लाह तबारक व तआला के हक की मस्ती में शर्शार हो गया था, वो कहां पर दुनियादारी पर जो है दुनियादार से मुलाकात करने पर आमदा हो सकता है। तो ज़िंदानी मोहतरम, तो लोग ये कहते हैं कि आपके सगे भाई हैं, फला हैं, फला हैं, तो मैं रज़ी अल्लाह तआला उस तरह से इनकार कर देते हैं। उससे मिलना तो दूर, मैं उसकी सूरत तक नहीं देख सकता, क्योंकि वो तालिब दुनिया होकर आ रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मियां रज़ी अल्लाह तआला की शान बजीशान वो है कि आप जब तर्क दुनिया की फर्जियत भी हुक्म नहीं आया हुआ था, जब से ही आप तारिक दुनिया बने हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुन लिया था। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह जिनको चाहता है अपनी रहमत में खास कर लेता है। हाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर मामलात होने के बाद मियां रज़ी अल्लाह तआला किसी की बात सुनने पर आमदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको रूहानियत पर, दीन पर, शरीयत पर ज्यादा आपकी रुझान उधर रहा, आपका उधर उस तरफ माइल हो रहा था। तो इस बिना पर आपके अपने कबीले वाले रिश्तेदार, अहबाब, मामू, नाना वगैरह जो है ये आपस में मशवरा तय करते हैं कि मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बादशाह के पास जाने से इनकार कर रहे हैं, इस किस्म से हमारे साथ मामलात नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनके साथ एक ही शख्स की वो बात सुन सकते हैं जो अगर दीनदारी पर वो आमदा हैं, एक दीन का रहबर उनको बना दिया जाए, किसी का मुरीद बना दिया जाए, तो वो उनकी बात सुनेंगे। ये मशवरा तय कर मियां रज़ी अल्लाह तआला से कहते हैं कि चलो फला शेख हैं, फला मशाइख हैं, जिनका इस वक्त जमाने में बहुत बड़ा चर्चा है, उनके पास ले जाएंगे। एक पीर के पास ले जाते हैं मुरीद बनाने के लिए। एक पीर कहते हैं कि फला परसों जो है जुमेरात है, वो मुबारकुल मुल्क आएंगे, तो मैं उनसे पूछ कर तुम्हें तरबियत करवाऊंगा। तो मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आज ये फला मेरे नाना से, फला से पूछ कर जो है मुझे तरबियत करवा रहे हैं, क्या कल को खुदा ना खास्ता मुझे दोज़ख के फरिश्ते अगर दोज़ख को ले जाते हो, उन्हीं को पूछ कर ये दोज़ख से मुझे आजाद करवाएगा? ये पीर नहीं हो सकता। लिहाजा ये कहकर सिरे से इनकार करके वहां से भी निकल जाते हैं। फिर एक दोबारा पीर के पास जाते हैं बैयत करने के लिए, इलाका लगाने के लिए, तो तरबियत होने के लिए। उसके पास जाने के बाद वो पीर ये कहता है कि ये फला खबर है, तो तुम बोलो कि फला खबर वाले ये मेरे पीर हैं। तो मियां रज़ी अल्लाह तआला जैसे ये अल्फाज सुनना था, आप रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, मुर्शिद जिंदा हुआ करता है जो रहबरी के लिए रहनुमा बनकर आगे आगे आता रहे, तो ये जो खबर में है वो मेरा मुर्शिद नहीं हो सकता। लिहाजा ये कहकर भी वहां से वापस लौट जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से 3 जगह पर ले जाया जाता है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम के खलीफे दुआम को जो है वहां पर कहाँ से फैज मिलना था, जो दुनियादार होकर रहे थे, जो अजल से दुनियादारी को इनकार कर बैठे थे, वो दुनियादारों के पास से उनको कैसा फैज मिल सकता है?
कैसे वहां पर उनको जो है उनकी मुराद पा सकते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम के उस खलीफे दुआम को जो है पीर कामिल की तलाश थी। वो पीर कामिल जो सर तापा पीर रहा करता था, जो इमाम अलैहिस्सलाम की तरह पीर कामिल की तलाश में रहा करते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक वक्त का इस तरीके से मामला हुआ कि मलिक बक्कन मलिक बक्कन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैर खोरी के लिए निकले हुए थे। इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले की तरफ जो है आपकी नजर पड़ी, आपको इत्तला मिली कि वहां पर एक अल्लाह वाला गिरोह आया हुआ है। तो उस गिरोह के पास आपको वहां पर वक्त ने ले गया, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर आपको भेजा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब वहां पर गए तो इमाम अलैहिस्सलाम की नजर मलिक बक्कन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पड़ी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ मलिक बरखुरदार, आओ मलिक बरखुरदार। ये मलिक बरखुरदार जो नाम था आपका खास नाम था। जिस तरीके से घर में अलग नाम हुआ करता है, आम लोगों में अलग नाम हुआ करता है, तो मलिक बरखुरदार ये कहकर इमाम अलैहिस्सलाम ने जब पुकारा, मलिक बक्कन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े ताजुब हो जाते हैं, जाकर आपके कदमों से करते हैं, बैठते हैं। पूछा जाता है कि मेरा नाम, ये जो नाम है मेरे घर वाले और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, मगर आपने वो पुकार दिया है। मैं आप पर तन मन जन सब फिदा करने वाला हूँ। आप ही के जैसे एक पीर कामिल की तलाश लिए हुए एक अल्लाह का दीवाना बैठा हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो बंदा उसको लेकर आता है। तो आपको जिक्र की तलकीन देने के बाद आप इजाजत तलब करते हैं। अजीजान मोहतरम, प्यासा कुएं के पास जाता है। आम तरीका क्या है? जिसको प्यास लगे, जिसको जरूरत हो पानी की, वो पानी की तरफ जाता है। मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई मलिक बरखुरदार, बंदे को यहाँ पर पूछ कर लाना नहीं है, खुदा ने बंदे को उन्हीं के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। अजीजान मोहतरम, खुदा ने बंदे को उन्हीं के लिए यहाँ पर भेजा हुआ है। तो अंदाजा लगाइए, कुआं खुद प्यासे के पास चला आया है, ये कितनी बड़ी प्यास हुई होगी, कितनी शिद्दत की प्यास हुई होगी। तो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तशरीफ फरमाते हैं, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कल समाअत फरमाने की कोशिश करेंगे। रब ताला से दुआ है कि बारिला हम तमाम को जो है वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा के तहत हमें वला तखलु लिमन यक़्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जिन्होंने अपनी जिंदगानी का हर पल अल्लाह की याद में गुजारा और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ही के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया और अल्लाह ही के लिए उन्होंने अपनी जानों को निछावर करते हुए कुर्बान कर दिया। रब ताला हम तमाम को उन पाकाने खुदा का सदका मैसर अता फरमाए। रब ताला हम तमाम को हज़रत बंदगी मियां से विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका अता फरमाए। रब ताला हमको इमाम इस्लाम का सदका अता फरमाए। रब ताला हम तमाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। रब ताला हम तमाम को अपने फजल में शामिल हाल रखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ फरमाए। सही माना में समझ कर पढ़ कर अमल पर होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।